Hello students, welcome to the video solution of the botany part for ANTS full test 3. Let's start with our first question. Read the question number 91. Which of the following is not correct? First option, a unicellular organism carries out its life activities within a single cell. Correct statement hai, right? George Pallet coined the term chromatin. No, this is wrong. The term chromatin is coined by Fleming, and George Pallet was the first scientist who observed ribosome under electron microscope. So option B is wrong. We have to find out not correct. So we'll go with option B. Let's read the option C. Virchow explained that new cells are formed from pre-existing cell. It is correct, right? Virchow gave omnis cellula e cellula. Schleiden and Schwann formulated the cell theory. Yes, the classical cell theory, the first cell theory was given by Schleiden and Schwann. So all statements are correct except B. So I am going with B option. Which among the following is a major disadvantage of the Linnaeus and Aristotle's classification? Linnaeus and Aristotle classification actually considered artificial system of classification. जबकि Linnaeus के कुछ work ऐसे हैं which is related to natural also. Okay, basically जो old classification system है that is artificial, right? And what was the basis of artificial system of classification? It is mainly based on the morphological characters. तो पहला point दिया है कि both are based on the morphological characters. Okay, तो क्या ये major disadvantage है? नहीं. First of all, they have taken only morphological characters. तो यहाँ पे only word नहीं लिखा है. And the second thing is, if any system is based on morphological characters, it is not a drawback, directly drawback, because any system later on also, any advanced system also, there will be one of the criteria which is morphology. So a system which is based on morphological character, it cannot be the major disadvantage of that classification. Second option, they considered the evolutionary relationships of the organism wrong. Evolutionary relationships were considered in phylogenetic system of classification, not in artificial system. Their classification resulted in putting completely different organism in the same group. Yes, this is the major disadvantage of Aristotle and Linnaeus classification. उन लोगों ने क्या किया, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म था, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उन्होंने सेम ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया. ठीक है, मेजर डिसएडवांटेज. सो आई विल गो विथ ऑप्शन सी. डी में था दे मैनेज टू क्लासीफाई एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन ग्लोब. क्या उन्होंने पूरे ग्लोब के, पूरे अर्थ के जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, जितना भी स्पेसीज है, क्या सबको उन्होंने क्लासीफाई किया था? नहीं, क्लासीफाई किया भी नहीं था और वो मेजर डिसएडवांटेज में काउंट भी नहीं होता. राइट, सो विल गो फॉर सी ऑप्शन. Identify the plant having leaves made of leaflets all attached at the tip of the petiole. Okay, एक ऐसा plant जहाँ पे जो leaflets है, अब जैसे ही बोलते हैं leaflet, then it is a compound leaf and all leaflets are attached to the single point which is the tip of the petiole. What kind of compound leaf it is? What kind of? Palmately compound leaf. And इनमें से कौन सा ऐसा example है that shows palmately compound leaf? It is silk cotton. So silk cotton has all the palmately compound leaves where a leaf has leaflets all attached at the tip of the petiole. 93 option B. 94. In XXXO type of sex determination. This sex determination technique we can see in grasshoppers, in crickets, in all other different types of insects. इस प्रोसेस में XX जो है ये फीमेल है और XO जो है ये मेल है. तो फीमेल यहाँ पे होमोगैमेटिक है, तो यहाँ पे लिखा है फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक. नहीं, फीमेल होमोगैमेटिक है, मेल हेटेरोगैमेटिक है. मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक. सो मेल आर हेटेरोगैमेटिक. आई विल गो विथ ऑप्शन ए.
इसका मतलब है कि मेल में जो गैमीट बनेगा उस गैमीट में 50% गैमीट में एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि बाकी 50% मेल गैमीट में देयर विल बी नो एक्स क्रोमोसोम। ओके। 95 प्लांट्स डोंट हैव पार्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज प्लांट में एनिमल जैसा कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या है। पहला ऑप्शन है एज कंपेयर टू एनिमल्स इन प्लांट्स रेस्पिरेशन रेट इज स्लो। ओके, करेक्ट है। प्लांट में एक्टिविटीज़ कम है। एक मेजर एक्टिविटी एनिमल्स में है लोकोमोशन, है ना, और प्लांट मूव ही नहीं करता, देयर इज़ नो लोकोमोशन इन द प्लांट। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे एक्टिविटीज़ है जहाँ पे प्लांट में वो सारे एक्टिविटीज़ नहीं होते, क्योंकि एक्टिविटीज़ कम है तो उसका एनर्जी, प्लांट का एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम है, right? So if an organism who have less activities, less need of energy, its respiratory rate is very slow. That's why plants में rate of respiration slower है compared to animals. That's why they do not need a particular specialized respiratory organ. Option A बिल्कुल correct है। Option B, each plant part is directly involved in exchange of gases. ये भी correct है। Each cell of the plant takes care of its own gaseous exchange. और plants का body, plants का जो strategy है वो भी ऐसा है कि at least some part of a cell should be in touch with the atmosphere ताकि वहाँ पे gaseous exchange हो सके. Even one cell to other cell, gaseous exchange occurs by simple diffusion. तो यहाँ पे A और B ऑप्शन जो है ये सही है। ऑप्शन C है availability of glucose is not a problem because glucose is synthesized during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज अवेलेबल है फॉर ब्रेकिंग डाउन इन द रेस्पिरेशन। इसके वजह से प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। इज इट करेक्ट? नो। इसके साथ इस क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 95 में ए और बी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल गो विद डी ऑप्शन। व्हाट इज द नीड ऑफ नोमेनक्लेचर? Nomenclature is the process of naming, or more clearly we can say it is the process of scientific naming of an organism. Okay, उसका क्या need है, ये question है। Option A, scientist can update the names of organism as required with changing time. नहीं, नोमेनक्लेचर में हम ये नहीं करते कि डे बाय डे एक ऑर्गेनिज्म का नाम हम लोग बार बार अपडेट या चेंज नहीं करते। इवन वी नो नोमेनक्लेचर में सबसे एक्सेप्टेड सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। एंड इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वी फॉलो द फर्स्ट प्रायोरिटी लॉ, राइट? एंड व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी लॉ? इफ एनी साइंटिस्ट has given a particular scientific name for the first time, और वो first name जो है accepted हुआ and universally वो accepted हो गया, universally वो agreed हो गया, उसके बाद अगर उसी organism के दूसरे name आते हैं, कोई दूसरे scientist उसका दूसरा कोई नाम propose करते हैं, तो भी जो पहला नाम है वही accepted होगा। मतलब original name will be always the first name, the second name, third name, उसके बाद जितने भी नेम आएंगे अगर वो करेक्ट है, अगर वो एक्सेप्ट हुआ भी, that will be considered as the synonym of the first name. ओके, तो ये तो एकदम बिल्कुल गलत है कि नोमेनक्लेचर में हम लोग ऑर्गेनिज्म के नाम बार बार अपडेट करते हैं। ठीक है। टू हैव ए स्टैंडर्ड नेम देना है फॉर एन ऑर्गेनिज्म इंस्टीड ऑफ हैविंग मैनी नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। यस, दिस इज ए करेक्ट आंसर। इसीलिए हम लोग साइंटिफिक नेमिंग करते हैं, क्योंकि लोकल नेम्स और वर्निकुलर नेम्स प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड वी नीड that one organism should have only one name, and for that we do nomenclature. Correct answer. Option C, nomenclature is a process which gives same name to all organism. बिल्कुल नहीं। क्या nomenclature में हर एक organism को हम एक ही नाम देते हैं? एकदम wrong है।
nomenclature is more correct than vernacular names. ऐसा कोई है नहीं कि nomenclature ज़्यादा correct है compared to a local name, है ना, ऐसा कोई जो है logic है नहीं. तो we'll go for 96, we'll go for option B. Functional megaspore in an angiosperm does not develop into. Now if we say an angiosperm and we have megaspore mother cell diploid, और यहाँ पे जब meiosis होता है it produce 4 megaspores, right? But out of the 4 megaspores 3 degenerate and only 1 functional megaspore remains. Now this functional megaspore, which is haploid, it develops into an embryo sac. The other name of embryo sac is the female gametophyte, okay, and it develops into a 7-celled 8-nucleated structure. तो ये जो है concept हमें जानना पड़ेगा, है ना. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फंक्शनल मेगास्पोर क्या नहीं बनता. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट है एम्ब्रायो सेक तो बनता है ना. फीमेल गैमेटोफाइट ये तो बनेगा. 7 सेल स्ट्रक्चर ये भी बनेगा, राइट. क्या नहीं बनता? देन आई विल टेल न्यूसेलस नहीं बनता. न्यूसेलस इज द टिश्यू ऑफ ओव्यूल, राइट, एंड from the nucellus tissue only one of the cell specialized to become the megaspore mother cell. That means it is like ovule has nucellus and one of the cell of nucellus became megaspore mother cell that later developed into functional megaspore. So 97, the correct answer is option C. 98. In the following question, a statement of assertion is followed by statement of reason. Assertion: bryophytes are the amphibians of the plant kingdom. Yes, bryophytes are called amphibians because bryophytes are the first land plant, okay, but they are dependent on water for sexual reproduction. So though they are found on land, but still their life cycle, to complete their life cycle, they are dependent on water. So they are called amphibians of the plant kingdom. Reason दिया हुआ है, they occur in damp, humid and shaded localities, play an important role in plant succession on bare rocks or soil. This statement is also correct. But is the reason justifying the assertion? No. As I told, अगर assertion में लिखा है कि bryophytes are the amphibians of the plant kingdom, what we have to tell? Bryophytes, reason क्या होना चाहिए था? Bryophytes are the first land plants but their life cycle dependent on water, or they are dependent on water for sexual reproduction. Then would have been a correct explanation. तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे? Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Are we correct? Then I'm going with option B. 99. Leaf fall occurs in a tree when there is an increase in the concentration of. कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसके इंक्रीज होने से एब्सिशन होता है? लीफ फॉल मीन्स एब्सिशन. Abscission, that is what? Abscisic acid. Very easy question. Option A is the correct answer. Plus minus population interactions is exhibited by. Plus minus interaction we can see in parasitism and in predation. तो हमें ऑप्शन में ढूंढना है इनमें से कौन सा या तो parasitism है या तो predation है. Trematode and snail. Yes, trematode is a parasite and snail is a host. Trematode has total 2 intermediate hosts, snail and fish, and the main host is human. That means it is a plus minus interaction, it is parasitism. I will go with option A. Let's read the other option. Balanus and Cathamelus, ये competition का example है, so it is minus minus. Sea anemone and clownfish, it is commensalism, so sea anemone neutral, clownfish plus. Orchid ophrys and B example of mutualism. So here 100, option A is the correct answer.
cortex is one type of ground tissue. So there are three tissue system normally we see, है ना, क्या क्या है, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू. एक्चुअली द टिश्यू इज टू टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और ये सारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ. काफी इजी आंसर है. नेम द स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल एट विच फॉलोइंग इवेंट्स occur. सो यू हैव टू रीड द इवेंट्स और हमें आइडेंटिफाई करना है ये इवेंट कौन से फेस में हो रहा है. फर्स्ट है क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर. स्पिंडल इक्वेटर कब मूव करेगा, हमें पता है मेटाफेज में क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पे मूव करेगा, राइट. और अगर ये माइटोसिस हुआ इट विल बी मेटाफेज, और अगर मियोसिस में हुआ तो मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, कोई भी मेटाफेज हो इट विल गो टू द स्पिंडल इक्वेटर. सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमोसोम्स सेपरेट. ये कब होगा, एनाफेज. अगर माइटोसिस हुआ तो एनाफेज, और अगर मियोसिस हुआ देन आई विल गो विथ एनाफेज 2, नॉट एनाफेज 1. एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता. पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस. होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग साइनेप्सिस कब होता है, zygote. Zygote is the second stage of prophase 1 of meiosis. Crossing over between homologous chromosome takes place. It is pectine. Pectine is the third stage of prophase 1 of meiosis. तो पहले तो हमने समझ लिया आंसर क्या करना है. Let's now match it with the option. सबसे पहले देखो मेटाफेज ढूंढते हैं. देखो यहाँ पे लेप्टोटीन दिया है, पहले कैंसिल कर दो. लेट प्रोफेस, नो नॉट लेट प्रोफेस, राइट. अभी बचा मेटाफेज 2, मेटाफेज 1, दोनों ही हो सकता है. मैंने क्या कहा, मेटाफेज 1 भी हो सकता है, मेटाफेज 2 भी हो सकता है. अभी सेकेंड वन आंसर था एनाफेज या एनाफेज 2. यहाँ पे दिया हुआ है एनाफेज 1, यहाँ पे दिया है एनाफेज 2. तो एनाफेज 1 तो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया. तो ऑप्शन डी ही हमारे लिए करेक्ट होगा, है ना. कितना आसान है. देखो अगर दो ही मैच कर लिया तो आंसर मिल गया. फिर भी देखते हैं बाकी. तो ये मेटाफेज 1 में हुआ, एनाफेज 2, थर्ड है जाइगोटीन, यस जाइगोटीन, एंड नंबर 4 दिया है प्रोफेज 1. यस प्रोफेज 1 दे सकते हैं क्योंकि पैकाइटिन इज ए पार्ट ऑफ प्रोफेज 1. सो आवर करेक्ट आंसर फॉर 102 इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 103. इफ इन ए फूड चेन फॉलोइंग एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी 2 into 10 to the power 9 जूल ऑफ सनलाइट इज अवेलेबल. ओके, तो क्या कहा गया है, एक आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी है और वहाँ पे अवेलेबल सनलाइट है. लेट मी राइट इट फर्स्ट. इट इज 2 into 10 to the power 9 जूल. तो यहाँ पे हमें निकलना है कि फाइंड द एनपीपी इन प्लांट्स में एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना होगा. अभी हमें क्या पता है कि इफ इट इज एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी देन हाउ मच ऑफ अवेलेबल सनलाइट, व्हाट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल सनलाइट अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू एनपीपी, एंड द आंसर इज 1%. सो व्हाट विल बी द 1% ऑफ दिस अवेलेबल सनलाइट, 2 into 10 to the power 7 जूल. तो जो रॉन्ग आंसर है उसको हम लोग पहले ही जो है रिमूव कर देते हैं. देखो तो सी और डी जो है वो नहीं होगा, बिकॉज द एनपीपी शुड बी 2 into 10 to the power 7 जूल. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट, द अवेलेबल एनर्जी इन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल रेस्पेक्टिवली. नाउ इफ यू सी द थर्ड ट्रॉफिक लेवल देन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स such as plants. Second trophic level are primary consumers. These are herbivores. And the third trophic level है secondary consumers, which are also can be called as primary carnivores. तो क्वेश्चन है प्राइमरी कार्निवोर्स में कितना एनर्जी जो है अवेलेबल होगा, कितना एनर्जी उसको मिलेगा. तो यहाँ पे अगर एनपीपी है 2 into 10 to the power 7, तो यहाँ पे रूल फॉलो होगा 10% रूल. ओके, तो हाउ मच विल बी द 10% ऑफ दिस, इट विल बी 2 into 10 to the power 6 जूल to the second trophic level, that is the herbivore,
and how much will go to the primary carnivores, the third trophic level? So it will be 2 into 10 to the power 5 joule. Okay, 10 to the power 5 joule. So our answer will be this. So where it is 2 into 10 to the power 7 joule NPP, or third trophic level में 2 into 10 to the power 5 joule, that is option B. Identify the correct set of statement. Two chains of DNA are coiled in a left-handed fashion only. No. In majority of DNA, the DNA helix is coiled in right-handed fashion. Okay. In Watson and Crick model of BDNA, it is clearly written that DNA is right-handed coil. But is there any DNA which is left-handed also? Yes. There is a DNA called ZDNA which is left-handed coil. तो DNA में लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड होता है, कौन सा ज़्यादा कॉमन है? सबसे कॉमन क्या है? राइट हैंडेड कॉइल. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? लेफ्ट हैंडेड फैशन ओनली. तो क्या ये करेक्ट है? नो. गुआनाइन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन with 3 hydrogen bonds. Correct. Pitch of DNA helix is no. It is 3.4 10 to the power minus 9 meter because the pitch is 3.4 nanometer. Okay. DNA polymer has a phosphate moiety at 3 prime end. No, it will be at 5 prime end. So this is also wrong. The length of DNA is usually defined as number of nucleotides. Correct. DNA length is defined as a number of nucleotides. क्या ढूंढना है? Choose the correct answer. कौन सा correct होगा? Option B and option E. B and E only. C is our correct answer. Okay. During Z scheme, electrons from the excited chlorophyll A molecule of photosystem 2, Z scheme, that is non-cyclic photophosphorylation. What we saw? PS2 है, chlorophyll A है, excited हुआ, electron कहाँ गया? To the primary electron acceptor, then it go to plastoquinone, it go to cytochrome B6F, then to plastocyanine, then to chlorophyll A of PS1, then FRS to FD, then via FNR it goes to NADP plus. राइट. तो ये है हमारा Z स्कीम. तो जो भी इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए ऑफ PS2 से रिलीज हुआ उसका क्या हुआ? इट पास टू द क्लोरोफिल ए ऑफ PS1. करेक्ट है? द इलेक्ट्रॉन पास टू द PS1 क्लोरोफिल ए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. लिखा है रिटर्न बैक. ऑप्शन बी में लिखा है रिटर्न बैक टू PS2. रिटर्न बैक नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस क्या है? नॉन साइक्लिक. साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जो है रिटर्न होता है. टर्मिनली एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन. नो. ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ETS होता तब हम बोलते कि टर्मिनल एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन. कंपेंसेट कर रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH. नो. यहाँ पे NADPH ऑक्सीडेशन नहीं होता लाइट रिएक्शन में, और कंपेंसेशन की तो यहाँ पे बात ही नहीं है. जो भी इलेक्ट्रॉन PS2 लॉस कर रहा है इसका कंपेंसेशन आता है बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. ठीक है. तो यहाँ पे 105 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. 106 The IUCN Red List 2004 documented the number of species that are extincted in the last 500 years. Find the mismatch. Which one is wrongly written? Total number of extinct species 784, number of vertebrate 338, number of plant 87, but the number of invertebrate is wrongly written. The correct number is 359. Okay, done. So we'll go with option C. C is a mismatch. A population has more young individuals compared to the older individuals. What would be the possible R value of the population? ऐसा पॉपुलेशन जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब चिल्ड्रन ज़्यादा है. और कौन से पॉपुलेशन में चिल्ड्रन ज़्यादा होता है? जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, राइट. और इन केस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कोर्स द बर्थ रेट विल बी मोर देन द डेथ रेट. सो व्हाट इज आर?
R इक्वल टू B माइनस डी, और अगर B ज़्यादा है तो यहाँ पे R वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव. सो आई विल गो विथ ऑप्शन ए, R वैल्यू पॉजिटिव. 108. ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर. क्या स्ट्रक्चर है ये? स्ट्रक्चर है मेटाफेस क्रोमोसोम. ओके, मेटाफेस क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट और सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम का. और जो एक्स है वो क्या शो कर रहा है, ये एक्स क्या शो कर रहा है, इट इज़ द काइनेटोकोर. और काइनेटोकोर क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर. ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ. ऑप्शन ए था इंटरफेस क्रोमोसोम. इंटरफेस क्रोमोसोम, पहले तो इंटरफेस क्रोमेटिन होता है, क्रोमोसोम होता ही नहीं. इंटरफेस क्रोमेटिन जो है ये पूरा डिकंडेंस होता है, तो इतना हमें थिकन और कंडेंस फॉर्म में नहीं मिलेगा. मेटाफेस क्रोमोसोम ठीक था, लेकिन यहाँ पे सैटेलाइट नहीं है सबके. देयर इज नो, इट इज नॉट ए सैटेलाइट, इट इज ए काइनेटोकोर. 109. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. Statement 1. Amino acids have no structural specialties to read the code uniquely. एमाइनो एसिड के पास कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है कि वो जेनेटिक कोड को रीड कर सके. एकदम करेक्ट है. एमआरएनए में जो जेनेटिक कोड है वो नाइट्रोजेनस बेसिस है, और उसको रीड करने के लिए उस बेस के साथ बाइंड होना पड़ेगा. क्या एमाइनो एसिड डायरेक्ट जाके किसी भी नाइट्रोजेनस बेस के साथ बाइंड हो सकता है? क्या उसके पास ऐसा स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी है? द आंसर इज नो. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट 2. फ्रांसिस क्रिक postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and other hand bind with the amino acid. ठीक है, ओके. सो बाद में ये प्रपोज किया गया कि एडाप्टर मॉलिक्यूल क्या है, tRNA. ओके, और tRNA जो है इसके पास होता है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट. ओके, and by using amino acid binding site it bind with the respective amino acid, और ये tRNA का 3 प्राइम एंड है. और इस अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट के कम्प्लीटली रिवर्स, मतलब कम्प्लीटली ऑपोजिट साइट क्या है? ऑपोजिट साइट है एंटीकोडन. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीकोडन? टू बाइंड विद द कोडन ऑफ mRNA. और यही लिखा है स्टेटमेंट 2 में. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. So we'll go with both statement 1 and statement 2 are true. Option D. The component of the respiratory chain of mitochondrial cristae. Mitochondrial cristae respiration में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है? Who ultimately give electron to oxygen? तो यहाँ पे है साइटोक्रोम बी. नहीं, साइटोक्रोम बी नहीं होगा. साइटोक्रोम A3, यस, साइटोक्रोम A3 इज द करेक्ट आंसर. ए नहीं है और सी नहीं है. ओके, तो अगर हम देखें, अगर इलेक्ट्रॉन NADH+ इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, देन कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 3 और कम्प्लेक्स 4 यूज हो रहा है. अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू ऑक्सीजन. और अगर FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो पाथवे है कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3 एंड कम्प्लेक्स 4 एंड इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू ऑक्सीजन. ठीक है, तो कम्प्लेक्स 1 में है FMN आयरन सल्फर. ओके, यहाँ पे आ जाएगा UB क्विनॉन. और कम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 विथ आयरन सल्फर. तो यहाँ पे साइटोक्रोम B तो होगा ही नहीं क्योंकि ये कम्प्लेक्स 3 में है. अभी भी कम्प्लेक्स 4 बाकी है. कम्प्लेक्स 4 में है साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, और यहाँ पे कॉपर सेंटर होता है, कॉपर A, कॉपर B. अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? साइटोक्रोम A3. साइटोक्रोम A3 से कहा जा रहा है ऑक्सीजन में जा रहा है. ठीक है, क्योंकि कॉपर तो ऑप्शन में है ही नहीं. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा साइटोक्रोम A3, दैट इज ए पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स 4. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कम्प्लेक्स 4? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस. ठीक है, और कम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में आता है साइटोक्रोम C. साइटोक्रोम C आता है, तो ये भी नहीं होगा. तो हम जाएंगे साइटोक्रोम A3 के साथ. अगर FADH2 को देखें तो कम्प्लेक्स 2 में क्या होता है? FAD एंड आयरन सल्फर. बाकी तो सेम ही है. यहाँ पे होगा UB क्विनॉन, यहाँ पे होगा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 आयरन सल्फर, यहाँ पे आ जाएगा साइटोक्रोम
C complex form में as it is. Okay, so for 110 our correct answer is option B. Which phylum of plants has representatives that are known for their unique reproductive structure called the cone? कौन से ग्रुप में कोन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रोबिलस? ओके, एंड द आंसर इज जिम्नोस्पर्म्स. ब्रायोफाइटा में नहीं है, एल्गी में नहीं है, एंजियोस्पर्म में तो डायरेक्टली फ्लावर है एज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. कुछ टेरिडोफाइट्स में कोन्स होते हैं, बट इवन टेरिडोफाइट्स इवन नॉट इन द ऑप्शन. और टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं है कि सारे टेरिडोफाइट्स में होते हैं, सो इट इज़ नॉट ए पर्टिकुलर डिफाइनिंग फीचर फॉर द टेरिडोफाइट. सो इट कैन बी ए डिफाइनिंग फीचर फॉर द जिम्नोस्पर्म एटलीस्ट, है ना. तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ. द क्रॉस बिटवीन white-eyed female Drosophila and red-eyed male Drosophila. Okay, eye color gene is located on the X chromosome of Drosophila. तो अगर फीमेल है तो यहाँ पे XX. ओके, तो ये X linked जीन है, मेल है XY. Now white-eyed Drosophila तो यहाँ पे होगा WW. तो ये फीमेल है white-eyed. तो वाइट जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है. क्या है ये? रिसेसिव कैरेक्टर है. और जो डोमिनेंट है वो है रेड. तो यहाँ पे रेड के लिए वाइल्ड फॉर्म के लिए डोमिनेंट के लिए हम लोग W+ लिखते हैं. तो ये कंडीशन दिया गया है कि एक रेड आइड मेल ड्रोसोफिला एंड वाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला को अगर क्रॉस करे उनका रिजल्ट क्या होगा. देखो ये जो X है, इस X को लेके आते हैं हम लोग, X W एंड दिस X फ्रॉम द मेल W+. तो ये एक फीमेल हुआ. नाउ W है रिसेसिव और W+ इज डोमिनेंट. तो कौन सा कलर शो होगा फीमेल में? ये होगा रेड आइड. तो पहले तो रेड आइड फीमेल देख लो, रेड आइड फीमेल है यहाँ पे, है ना. तो व्हाइट आइड ये तो होगा ही नहीं. हाँ, व्हाइट आइड लिखा है तो होगा ही नहीं, है ना. और यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, व्हाइट आइड फीमेल नहीं होगा. तो चांसेस क्या है? ये रेड आइड फीमेल और यहाँ पे देखो रेड आइड फीमेल. आगे देखते हैं मेल कैसा होगा. यहाँ से X क्रोमोसोम लेते हैं हम लोग. एक X क्रोमोसोम लो फीमेल से, W, और यहाँ पे Y क्रोमोसोम मेल के लिए. ओके, तो यहाँ पे तो सिर्फ रिसेसिव जीन ही एक्सप्रेस होगा. तो यहाँ पे मेल क्या हो जाएगा? व्हाइट आइड मेल. तो अभी मैच करो कहाँ पे है. यहाँ पे तो लिखा है रेड आइड मेल, तो ऑप्शन ए नहीं होगा. बच्चा हमारे पास डी ऑप्शन, व्हाइट आइड मेल एंड रेड आइड फीमेल. 112 ऑप्शन डी. Which of the following symbol in a floral formula represents actinomorphic symmetry and superior ovary respectively? Okay, परसेंटेज जो है ये शो करता है जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री. तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, है ना. जबकि ये था सुपीरियर ओवरी. ये वाला पार्ट करेक्ट था, ये वाला पार्ट क्या है? रॉन्ग है. ये है एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री और ये है सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस. सो बी इज आवर करेक्ट आंसर. लेट्स सी इन द सी. यहाँ पे P और A दिया हुआ है. P इज पेरियांथ, A इज एंड्रोशियम. और यहाँ पे पेरियांथ एंड एंड्रोशियम्स आर कनेक्टेड शो कर रहा है. दैट इज नॉट एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री. ओके, G नॉट मतलब गाइनोशियम नहीं है यहाँ पे, ये शो कर रहा है, ये करेक्ट नहीं है. ये एक्टिनोमॉर्फिक तो करेक्ट था, लेकिन ये G ये क्या शो कर रहा है? इन्फेरियर ओवरी. क्या शो कर रहा है? इन्फेरियर ओवरी. तो ये डी ऑप्शन भी नहीं है. 113 में हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ. Okay, identify the correct statements. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors of the place. Correct है? अगर detritus में लिग्निन और काइटिन है तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा. अगर नाइट्रोजन रिच है या वाटर सोल्यूबल शुगर है डेट्रिटस में तो डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होगा. तो क्या केमिकल कंपोजिशन मैटर करता है डिसाइडिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन? आंसर इज यस. क्या क्लाइमेटिक फैक्टर मैटर करता है? यस. हाई टेम्परेचर में डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है, लो टेम्परेचर में कोल्ड कंडीशन में डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होता है. सॉयल मॉइस्चर जितना ज़्यादा हो डिकम्पोजिशन उतना ज़्यादा होगा. राइट, मॉइस्चर फैसिलिटेट्स द डिकम्पोजिशन. जबकि अगर एनवायरनमेंट ड्राई है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो होगा. तो ऑप्शन जो है वो नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. रीड द सेकेंड पॉइंट. ह्यूमस फॉर्म्ड इन द सॉइल कैन नॉट बी
डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है हाईली, हाँ रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट है, बट ह्यूमस कैन बी डिग्रेडेड दो द डिग्रेडेशन इज वेरी स्लो। तो यहाँ पे तो लिखा है कि कैन नॉट बी डिग्रेडेड, सो दिस गॉन रॉन्ग। इन डिकम्पोजिशन complex organic matter is broken into inorganic substance like carbon dioxide, water and nutrients। करेक्ट है ना? तो हमें करेक्ट जो है लिख के रखते हैं, 1 मिला और 3 मिला अभी तक। चलो आगे देखते हैं। डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद डेट्रिटस, बिल्कुल, और डेट्रिटस में एग्जाम्पल है डेड लीव्स, बर्ग, डेड फ्लावर्स एक्सेट्रा, एकदम करेक्ट है। नंबर 4 भी करेक्ट है। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक, नहीं ऑर्गेनिक नहीं होगा, ये होगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, सो यहाँ पे नंबर 5 रॉन्ग है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 2 3, 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which among the following is incorrect about the adaptations of slime molds in unfavorable condition? Unfavorable condition के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? Slime molds form an aggregation plasmodium which grow and spread. Now plasmodium is formed during favorable condition. In favorable condition, the cells of slime mold, they withdraw their cell wall and all the protoplasm fuse and they form a sinocytic plasmodium. Okay, and in the plasmodium there is multinuclear condition with a fused protoplasm. और ये condition तभी होता है जब conditions क्या होते हैं? favorable, मतलब plasmodium तभी बनता है जब favorable condition होता है। तो क्या ये अनफेवरेबल के लिए सही है? नहीं, तो हमें तो इनकरेक्ट ही ढूंढना है। आई विल गो विथ ऑप्शन ए। रीड द अदर स्टेटमेंट्स। स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। यस, फ्रूटिंग बॉडी अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल होगा, प्लाज्मोडियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगा एंड दिस फ्रूटिंग बॉडी विल फॉर्म द स्पोर्स। स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। यस, स्पोर्स में सेल वॉल होता है जबकि प्लाज्मोडियम में सेल वॉल नहीं था। और क्यों सेल वॉल होता है? वी नो द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज प्रोटेक्शन इन नेचर, राइट? तो यहाँ पे ये भी अनफेवरेबल के लिए ही सही है। स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट डन एंड कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स। ओके, सर्वाइवल फॉर ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन, इट शोज एडेप्टेशन ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। So 115, the correct answer is option A. 116, in the following question, statement of assertion followed by statement of reason. Assertion: a very low level of expression of lac-operon has to be present in cell all the time. Correct. Why always lac-operon has to run though it might be very inefficient? Okay, very inefficiently lac-operon has to run ताकि वहाँ पे जो lac-Y जीन है वो हमेशा एक्सप्रेस करे और क्या बनता रहे? lac permease, because lac permease allow entry of lactose inside the cell of bacteria, and if lactose come, then only there is possibility that lac-operon will be fully functional. Okay, so here assertion is correct. रीजन है लैक्टोज इनएक्टिवेट द repressor. Yes, the repressor is binded with the lactose so that the repressor protein cannot bind with the operator, and when repressor protein is not binded with the operator, then it allow RNA polymerase to access the promoter. तब RNA polymerase promoter से जो है स्ट्रक्चरल जीन को रीड कर सकता है आगे जाके, और पूरा lac-operon के जितने भी जीन्स हैं, जैसे ZYA, पूरी तरीके से अभी ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है, लेकिन क्या assertion और रीजन कनेक्टेड है? आंसर इज नो, सो आई विल गो विथ ऑप्शन बी। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. A milestone contribution to the understanding of action spectrum was made by T.W. Engelmann. Yes, T.W. Engelmann ने एक बहुत बड़ा contribution दिया. He gave the first action spectrum of photosynthesis. उनके experiment में कौन सा चीज़ यूज़ नहीं हुआ? इनमें से कौन सा चीज़ उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं था?
बैक्टीरिया, यस बैक्टीरिया उन्होंने यूज़ किया, ही यूज्ड एरोबिक सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया। प्रिज्म उन्होंने यूज़ किया टू स्प्लिट लाइट। लोअर प्लांट उन्होंने यूज़ किया क्योंकि उन्होंने एक ग्रीन एल्गा यूज़ किया था, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा इज ए लोअर प्लांट। क्या उन्होंने हायर प्लांट यूज़ किया था? नहीं। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, हायर प्लांट इज नॉट पार्ट ऑफ T.W. इंगेलमैन्स एक्सपेरिमेंट। 118 मैच द फॉलोइंग। किंगडम, किंगडम इज प्लांटी, okay, so A I will connect with plantae, very easy. Class, class is Sphenopsida, so I'll go with B3. And division, division is pteridophyte, so C will be 1. So my order is 2 3 1, 2 3 1, option B. Okay, clear है? Find the mismatch. 119, find the mismatch. Epidermis, it is usually a single layered structure, correct, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी सरफेस ऑफ द प्लांट। यस, रूट में भी एपिडर्मिस होता है, लीफ में भी है, स्टेम में भी है, ऑल ओवर द बॉडी, करेक्ट है। स्टिल ए कलेक्टिव टर्म फॉर वास्कुलर टिश्यू, पीट एंड पेरिसाइकल। यस, ऑल द टिश्यूज बिलो एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टिल। एंड एंडोडर्मिस के नीचे क्या आता है? नीचे आता है पेरिसाइकल, वास्कुलर टिश्यूज, और सेंटर में कौन है? पीट। एपिब्लेमा इज द अदर नेम ऑफ एपिडर्मिस ऑफ रूट, अगेन इट इज करेक्ट। So A, B, C correct, हमें ढूंढना है mismatch, of course D should be the our target answer. Cuticle लिखा है, small opening on the leaf surface that are surrounded by gut cell. No, it is the definition of stomata. तो ये cuticle है नहीं। Cuticle क्या है? Cuticle है waxy waterproof layer that helps prevention of water loss. So option D is a mismatch. Pyruvic acid is dash to produce lactic acid in muscle cell of human. Lactic acid fermentation. If you see lactic acid fermentation, then pyruvic acid converted to lactic acid. Okay, and for this conversion, NaDH H plus is oxidized. Okay. NaDH breaks down into NaD plus and 2 hydrogen, and this 2 hydrogen contains 2 H plus and 2 electron, and this content goes to pyruvic acid. So pyruvic acid accept this hydrogen and electrons, that means यहाँ पे pyruvic acid का reduction हो रहा है और NaDH का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें बोलना था पायरुविक एसिड इज डैश, तो पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म द लैक्टिक एसिड। ओके, डन। इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लासेंटेशन। तो कुछ प्लासेंटेशन का यहाँ पे डायग्राम है। फर्स्ट लेट अस आइडेंटिफाई द डायग्राम। दिस इज पेराइटल, पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल में हमने 2 एग्जाम्पल सीखा था, मास्टर्ड एंड आर्जीमोन। ठीक है, ये क्या है? फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? प्राइमरोज एंड डायंथस। ये है एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल में क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था यहाँ पे लेमन, चाइना रोज, है ना, टमेटो, ये सब। तो पहले तो डायग्राम देख के ही बेसिक आइडिया लगा लेना है। नाउ लेट्स सी द आंसर। नंबर ए, पेराइटल में हमने क्या कहा था? मास्टर्ड या तो आर्जीमोन। कहाँ दिख रहा है मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा है। देखो ए में क्या लिखा है? आर्जीमोन। मैरीगोल्ड होगा क्या? नहीं, मैरीगोल्ड में क्या होता है? बेसल, तो ये तो पहले ही कैंसिल कर दो। चाइना रोज, नहीं, चाइना रोज क्या है? एक्साइल प्लासेंटेशन। डायंथस, डायंथस है फ्री सेंट्रल। देखो डायंथस क्या है? फ्री सेंट्रल। ऑप्शन डी कैंसिल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे बाकी इनको कंफर्म कर दो। बी में क्या था? डायंथस या तो प्राइमरोज, तो क्या लिखा है? डायंथस। और सी क्या है? लेमन। तो यहाँ पे 1 to 1 में करेक्ट आंसर है सी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। रीड द असर्शन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस। आर्टिफिशियल सिस्टम ने जो है क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस को अलग कर दिया और जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज था, अभी हमने पढ़ा था। रीजन क्या दिया है, क्यों ऐसा हुआ? आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये भी करेक्ट है। आर्टिफिशियल सिस्टम ने
वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया, दोनों को कंसिडर किया विथ इक्वल वैल्यू, उसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ब्लंडर हो गया। उन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुपिंग कर दिया और जो अलग अलग थे उनको एक साथ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे assertion रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ओके, अगर वो वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज ना देते तो ऐसा गलत क्लासिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? दोनों ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ऑप्शन ए। 1, 2, 3 read the following statements. The xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii. This is the definition of radial vascular system, and radial vascular system is found in roots. Option A correct. Hypodermis of all stems consist of collenchyma. No. Hypodermis in dicot stem is made of collenchyma and hypodermis of monocot stem is made of sclerenchyma. So we cannot say all stem hypodermis made of collenchyma. Option B wrong. The cortex of dicot root consists of several layers of thick-walled parenchyma. Wrong. It should be thin-walled parenchyma. Okay. Vascular bundle of dicotyledonous stem possesses endark protoxylem. Okay, any stem has endark protoxylem, any root has exarch protoxylem, so D option is correct. In monocot stem, phloem parenchyma is absent, it is correct. Choose the correct answer. I will go with A, D, E. A, D and E, option C. Pollination in water hyacinth and water lily is. In water hyacinth, in water lily, pollination occurs either by insect or by wind. Okay? क्या लिखा है? Not facilitated by insect. ये तो wrong है. Can be facilitated by insects. Not facilitated by wind. Wrong. More than one. No, wrong. क्या correct है यहाँ पे? Not facilitated by water. Yes. Water hyacinth, water lily, though their habitat is water, but still they do not use water for pollination. Okay, they do not show hydrophily, rather they show insect pollination, that is entomophily, or wind pollination, that is anemophily. So 1 to 4, our correct answer is B. Choose the correct option relevant to the figure given. One figure is given. Which options are correct for it? It is a tetrad. Yes, you can see there are 4 chromatids. So it is a tetrad. 4 sister chromatids. No. There are 2 sister chromatids. There are 2 sister. These and these are sister and these are sister chromatids. तो यहाँ पे 2 pairs of sister chromatids separately for each chromosome. जबकि ये क्रोमोसोम और ये दोनों क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर. दिस एंड दिस क्या होगा? नॉन सिस्टर. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 4 sister chromatid is a wrong point. 2 homologous chromosome correct. Has an egg-shaped structure. वो तो दिखाई दे रहा है, egg-shaped structure है और इसको क्या कहते हैं? chiasmata. correct है. The structure is formed at the first phase of prophase 1. No, first phase of prophase 1 is leptotin. Leptotin में पेयरिंग नहीं होता, लेप्टोटिन में पेयरिंग नहीं होता, जाइगोटिन में पेयरिंग होता है, जाइगोटिन में टेट्राड फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. तो ये रॉन्ग है. तो करेक्ट ढूंढना था हमें. क्या क्या करेक्ट मिला हमें? हमें मिल रहा है 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. ऑप्शन ए. 1 to 6. Which of the following taxa are in increasing order of their similarities? In the taxonomical hierarchy, as we go down from higher to lower category, then what will happen? Their similarity will increase. तो हमें ऑप्शन में यही देखना है कौन सा हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी जो है जा रहा है. क्लास है,
क्लास के बाद ऑर्डर, यस सिमिलरिटी इंक्रीज होगा, लेकिन ऑर्डर के बाद क्या दिया है, फाइलम, नो। ओके, फाइलम ये तो हायर कैटेगरी हो गया, यहाँ पे सिमिलरिटी डिक्रीज हो जाएगा। जीनस के बाद डिवीजन, ये तो हो ही नहीं सकता। किंगडम के बाद ऑर्डर, यस इंक्रीज होगा सिमिलरिटी। ऑर्डर से छोटा है जीनस, फिर सिमिलरिटी इंक्रीज होगा, और फिर स्पेसिफिक एपिथेट दैट मीन्स स्पेसिस। ऑप्शन सी फॉलोइंग ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सिमिलरिटी। ऑप्शन डी स्पेसिस स्मॉल से शुरू होकर लार्ज की तरफ जा रहा है तो सिमिलरिटी डिक्रीज होगा। 1 to 6 ऑप्शन सी। Which plant growth substances should you use for the following applications? Number A, increase yield of sugar in sugar cane. The answer is gibberellin, क्योंकि gibberellin sugar cane का length increase कर देगा। Gibberellin increases the length of internode of stem. Promote apical bud growth. Apical dominance कौन सा हार्मोन करता है? That is auxin. Cause sprouting of potato tuber, it will be ethylene. Delay leaf senescence, it is cytokinin. So we got our answer. Let's see in the option. Gibberellin, auxin, ethylene, cytokinin. Option B. Identify X, Y and Z in the figure showing enlarged view of an egg apparatus showing entry of pollen tube into a synergid. Okay, identify it. What is X? X is egg nucleus. Egg nucleus. Y is synergid. Okay, can you see that? And what is this finger-like apparatus? It is filiform apparatus. So our answer should be egg nucleus, synergid and filiform apparatus. So I'll go with option C. ऑप्शन X, ऑप्शन A में क्या था? X egg nucleus, ये करेक्ट था। Y लिखा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोलन ट्यूब बनते ही वेजिटेटिव न्यूक्लियस बिकम ट्यूब न्यूक्लियस, सो इट इज नॉट द आंसर। तो ये इस पार्ट के लिए रॉन्ग हो गया। एक्स में मेल गैमेट बिल्कुल नहीं, ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। एक्स एग एपरेटस, नो। एग एपरेटस में एक साथ पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं। एग एपरेटस इंक्लूड 2 synergid and 1 egg present at the micropyle of the embryo sac. तो यहाँ पे ऑप्शन डी रॉन्ग है। 1 to 8 will go with option C. 1 to 9. Which of the following is incorrect? Okay, incorrect about cyanobacteria, about blue-green algae. Let's read the point. Colonies are surrounded by gelatinous sheet. Correct है. Even the sheet is called mucilaginous sheet that makes cyanobacteria very slippery. So this is correct. Cyanobacteria are chemosynthetic autotrophs. No, cyanobacteria are oxygenic photoautotrophs. Okay, and they even have chlorophyll A. So B option is wrong. We have to find out the incorrect. We got our answer. C option read करो. Cyanobacteria help enriching oxygen level in the atmosphere. Yes, हमने कहा है अभी oxygenic है. It will use water in photosynthesis and will release oxygen. They have chlorophyll A similar to green plant. Correct. So 1 to 9. What is incorrect? Option B. 130. In human female, the feature for normal blood clotting is determined by. ब्लड क्लॉटिंग के लिए, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या चाहिए? क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर एक्स क्रोमोसोम में होता है। तो एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे है? पहले तो क्रोमोसोम 11 नहीं होगा, क्रोमोसोम 16 नहीं होगा। अभी यहाँ पे ऑप्शन बी है रिसेसिव जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड डोमिनेंट जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम। सो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, okay, it is a recessive character or dominant character. Of course it is a dominant character. So यहाँ पे ऑप्शन डी होगा आंसर हमारा, डोमिनेंट जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम। और जब इस डोमिनेंट जीन में कोई म्यूटेशन हो जाता है, उसी से क्या डिजीज होता है? क्या डिजीज होगा? हीमोफीलिया। एंड हीमोफीलिया जो है वो एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो अगर हीमोफीलिया होता कि एनी डिसऑर्डर इन नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, देन we would have give recessive gene on X chromosome. So here for 130 our correct answer is option D. Match the columns. Column 1, column 2. Option A क्या दिख रहा है हमें? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है टिपिकल बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पे A4 है, तो ये तो दो ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो जाता है। ओके, ट्राई करो कि मैच द कॉलम में पहला 1 2 कनेक्ट करने के बाद ही ऑप्शन में जो पॉइंट जस्टिफाई नहीं हो रहा है उसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक ऑप्शन सी और डी है। बी क्या है? बी इज
एपिथेलियल सेल, कोलुमनर एपिथेलियल सेल, यहाँ पे बी है 1, देखो यहाँ पे बी क्या है 3, 3 क्या है मेसोफिल सेल, क्या ये मेसोफिल सेल लग रहा है हमें, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या होगा B1, हमें तो आंसर मिल ही गया, आंसर है ऑप्शन सी। बाकी भी देखते हैं, सी क्या है, ये छोटे छोटे ऐसे सेल, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है, PPLO, PPLO, तो यहाँ पे बी हो गया हमारा 1 और सी हो गया यहाँ पे 5। डी क्या है, मेसोफिल, तो डी होगा 3 और ई क्या है, साइटोस्केलेटन, तो हमारा सीक्वेंस है 41532, 41532, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? Carbon dioxide. Carbon dioxide is required in the dark reaction. Of course, carbon dioxide is reduced to produce the glucose, essential. ATP is required. ATP is used in the reduction stage, in the regeneration stage, in the C3 cycle, right? तो A जो है चाहिए, B चाहिए हमें, C में है वाटर, वाटर यूज होता है लाइट रिएक्शन में ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्लोरोफिल लाइट रिएक्शन में होगा, फोटोन लाइट भी लाइट रिएक्शन में होगा। तो यहाँ पे विच इज रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन, आई विल गो विद A एंड B ओनली, ऑप्शन A। 133, which of the following is incorrect for the vascular system of maize? Maize is monocot, so monocot को दिमाग में रख के हमें आंसर करना है। A large number of scattered vascular bundles are present. Yes, तो मेज में, मेज जो है मोनोकॉट स्टेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स होते हैं, कनेक्ट है, यस। वास्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, यस कॉन्जॉइंट है, जाइलम फ्लोएम एक ही बंडल में है, और क्लोज है क्योंकि मोनोकॉट में वास्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है। ईच वास्कुलर बंडल सराउंडेड बाय पेरेनकाइमेटस बंडल शीट, नो, सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट, पेरेनकाइमेटस नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन, यस, जो पेरीफेरी में वास्कुलर बंडल है ये स्मॉल होता है, जो सेंटर में होता है वो लार्जर होता है, ये तो करेक्ट है, तो हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, विल गो विथ ऑप्शन सी। इन ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट द सिलेक्टेड मेल पेरेंट इज hexaploid and the female plant is diploid. The ploidy level of endosperm that will develop after double fertilization. Endosperm is the result of triple fusion. Okay, so first let us understand endosperm. Endosperm बनने में क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ पे चाहिए मेल गैमेट, एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्ली, माने मेल गैमेट प्लस 2 पोलर nucleus. Okay, that's why endosperm is called the resultant of triple fusion. Now here condition is given different. Female plant, if female plant is diploid तो हर एक पोलर न्यूक्ली का प्लॉइडी कितना होगा, हैप्लॉइड होगा, है ना, तो ये दोनों तो हो गए हैप्लॉइड। तो यहाँ पे जो मेल पेरेंट है वो दिया गया है हेक्साप्लॉइड। जब हम लोग मेल पेरेंट को डिप्लॉइड लेते हैं तो मेल गैमेट का प्लॉइडी कितना लेते हैं, n लेते हैं ना, तो अगर 2n है गैमेट मदर सेल तो मेल गैमेट कितना होगा n, लेकिन यहाँ पे 6n अगर है तो 6n का हाफ मेल गैमेट में कितना प्लॉइडी होगा, ये होगा 3n, और जब 3n प्लस n फ्यूज होगा देन आई विल गेट 5n, सो एंडोस्पर्म का प्लॉइडी कितना होगा, पेंटाप्लॉइड, आंसर इज बी। Okay, so we came to our last question. 135. Which of the following is not a cause for loss of biodiversity? Not a cause देखना है। Option A, destruction of wild habitat by commercial farming. Wild habitat destruction is a reason for biodiversity loss. तो ये तो होगा नहीं, है ना। Invasion by alien species. Alien species invasion is the cause of loss of biodiversity. We have to find out not the cause. Keeping animals in zoological park under human observation, क्या इससे biodiversity loss होगा, नहीं, ये तो ex situ conservation है, it is an ex situ conservation, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर है, it is not the reason of loss of biodiversity। डी ऑप्शन देखते हैं,
over exploitation of natural resources, not for need but for the greed. Yes, it is the cause of biodiversity loss. So for 135 our correct answer is option C. Okay, so we are done with this solution and best of luck for your next full length.